My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, this month is a month of deliverance for you. आपके लिए यह माह छुटकारे का माह है। God wants to bring His deliverance in your life. आपके जीवन में परमेश्वर अपना छुटकारा लाना चाहता You have been bound with several bondages. है। आप अनेक बंधनों से बंधे हुए रहे हैं You are unable to move forward. और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। Yesterday, a father came and cried, कल एक पिता आए और वो रोने लगे। My son मेरा बेटा, has finished his engineering, उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर ली his master's in management, और मैनेजमेंट में अपना मास्टर्स भी कर लिया and he got a good job. और उससे अच्छी नौकरी मिली। But as he was in the job, लेकिन जब वो नौकरी कर रहा था, after 8 months, 8 महीने के बाद suddenly the screen before him went blank before his eyes. अचानक ही उसके सामने जो स्क्रीन था वो पूरी तरह से गायब हो गया। He could not concentrate, वो ध्यान नहीं लगा पाया and a depression has come upon him. और उसके ऊपर एक अवसाद आ गया। Today he sits in his room all by himself. आज वो अकेला अपने कमरे में बैठा रहता है He says, I am not coming out. और वो कहता मैं बाहर नहीं आऊंगा, Nobody need to come to me. मेरे पास किसी को आने नहीं है, I will die. मैं मर जाऊंगा। Give all my inheritance to my sister. मेरी सारी विरासत मेरी बहन को दे देना, I am finished. मैं तो खत्म हो चुका हूँ। Bondage. बंधन। But Jesus came to set everyone who is under bondage to be free. लेकिन यीशु मसीह आए कि हर एक जो बंधन में है उनको वो छुटकारा दें। And the promise that God gives is found in John 8:32. और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर देते हैं वो यूहन्ना 8:32 में मिलता है। Jesus said, यीशु ने कहा, You will know the truth, तुम सत्य को जानोगे and the truth will set you free. और वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। I want you to be free, my child, says Jesus. यीशु कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह आजाद हो। If you know the truth, you will be set free. अगर तुम सत्य को जानोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। What is the truth? तो सत्य क्या है? It is not what, it is who. ये क्या नहीं, लेकिन कौन है। Jesus Christ is the truth. प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। Jesus said यीशु ने कहा in John 14:6, यूहन्ना 14:6 में, I am the way, मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth, मैं सत्य हूँ, I am the life, मैं जीवन हूँ, I am the life. मैं जीवन हूँ। I am giving you myself as the truth, my child, and you will have the way open for your future. मेरे बच्चे, मैं स्वयं को तुम्हारे लिए सत्य के रूप में दे रहा हूँ, उसके बाद तुम जीवन के लिए अपना मार्ग प्राप्त करोगे। You shall know Jesus Christ the truth, and you shall be set free to have a wonderful future and have life in this world to live. तुम प्रभु यीशु मसीह को सत्य के रूप में जानोगे और तुम्हारे पास एक अद्भुत जीवन होगा, भविष्य होगा इस संसार में। Let not your heart be troubled. इसलिए तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। As Jesus stood before Pilate to be sentenced, जब प्रभु यीशु पिलातुस के सामने न्याय के लिए खड़े हुए थे, Pilate asked, Are you a king? तो पिलातुस ने पूछा, क्या तू एक राजा है? Jesus said, Yes, I am the king. यीशु ने कहा, हाँ, मैं राजा हूँ, I am the only king, मैं ही एकमात्र राजा हूँ, the king over truth. जो सत्य के ऊपर राजा है। I am the truth. मैं सत्य हूँ I have come to bring truth to the whole world to set them free. और पूरे संसार के लिए मैं सत्य को लेकर के आया हूँ कि वे आजाद हो जाएं। And I am going to the cross to go through every suffering, every bondage that my children are going through today, to bear every one of their burdens, to set them free through my suffering. और मेरे बच्चे जितने भी त्रासदी से गुजर रहे हैं उन सबको उठा लेने के लिए मैं क्रूस से होकर के गुजर रहा हूँ। अपने दुख उठाने के द्वारा उनके हर एक बोझ और बंधन को हटा दूं। You Pilate the governor, you will have no authority over me unless it is given from और above. पिलातुस गवर्नर होने के बावजूद तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं जब तक वो तुम्हें ऊपर से न दिया जाए। I am the king of truth. मैं सत्य का राजा हूँ। Today you have the King of Kings who bears truth within himself, who has the power and the love to set you free आज वो too. राजाओं का राजा जिसके अंदर में वो सत्य है और जिसमें वो सामर्थ और प्रेम है कि वो तुम्हें भी आजाद कर सकता है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं And he says to और you, वो आपसे कहता है, Come to me, my child. मेरे बच्चे, मेरे पास आओ। All you that are burdened,
and are heavy laden, I will give you rest. तुम जो श्रम करते और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। Come to me. मेरे पास आओ। Come to Jesus. यीशु के पास आए। Come to Jesus. यीशु के पास आए And He will give you rest. और वो आपको आराम देगा। I want to pray for you even now. अभी भी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Power of God to set you free is coming to you. परमेश्वर की सामर्थ आपको छुटकारा देने के लिए आप में आ रही है। Open your heart अपना हृदय खोलें for yourself and your family members स्वयं और अपने परिवार के लोगों के लिए, and receive the truth, Jesus Christ, और उस सत्य प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें and tell Him, take over my life, Lord. और उससे कहें, प्रभु मेरे जीवन पर नियंत्रण लें। Everything is false in my life. मेरे जीवन में सब कुछ मिथ्या है। I have lived for the honor that the world gives, मैं तो संसार के आदर के लिए ही जीता रहा हूँ, but everything has become false. लेकिन सब कुछ मेरे लिए मिथ्या ठहरा है। But I want to live by the truth. लेकिन मैं सत्य के साथ और उसमें जीना चाहता हूँ। I need you, Lord Jesus, the truth to take over my life. मुझे आप चाहिए प्रभु यीशु, आप सत्य कि आप मेरे जीवन का नियंत्रण लें। Cry out right now. अभी उसे पुकारें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I know you love this, thy dear son, thy dear daughter. मैं जानता हूँ आप अपने इस बेटे और बेटी से प्रेम करते हैं। As they are crying unto you, Lord, जब वो आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, walk into their hearts. उनके हृदय में आप प्रवेश करें स्वामी। Fill them, उन्हें भर दें, fill them, भर दें, fill them. भर दें। Let everything of the evil powers of the world leave them in Jesus' name. यीशु के नाम में संसार की हर एक बुरी चीजें और शक्तियां उन्हें छोड़कर चली जाएं। Every sin, every bondage, every fear, every hate, leave in Jesus' name. हर एक पाप, हर एक घृणा और हर एक अन्य बातें यीशु के नाम में उन्हें छोड़कर चली जाएं। Power of God flow into them by the truth, Jesus Christ, and let them be set free. परमेश्वर की सामर्थ यीशु सत्य के द्वारा उनमें बहे और उन्हें आजाद कर दे। Set them free, Lord, प्रभु उन्हें आजाद कर दे by filling them with thyself. अपने आप से उन्हें भर करके। I know you're answering. मैं जानता हूँ आप उत्तर दे रहे हैं। You're entering into the heart of everyone who is praying with me. हर एक जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। My friend, receive the truth, Jesus Christ within you. मेरे मित्रों, यीशु मसीह जो सत्य है उसे अपने अंदर में आप स्वीकार करें Say thank you, Jesus. और कहे, धन्यवाद यीशु, Thank you for coming into my heart. मेरे हृदय में आने के लिए धन्यवाद। The truth, Jesus Christ. Thank you for coming into my heart. सत्य प्रभु यीशु, सत्य मेरे हृदय में आने के लिए धन्यवाद। Fill, Lord. हृदय प्रभु, Let everything be peace. हर एक चीजें जो है शांत हो जाएं। Peace. शांति, Peace. शांति And deliverance. और छुटकारा In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Jesus, the truth is in you, so rejoice. प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है आप में है, इसलिए आनंद मनाएं। As the truth, Jesus Christ, comes into you, what do you receive? इस सत्य प्रभु यीशु मसीह के आपके अंदर आने पर आपको क्या मिलता है? A cleansing of your spirit happens. आपकी आत्मा का शोधन वहां होता है। Today, we are talking about cleansing of our inner system, inner body. आजकल हम अपने शरीर के अंदरूनी भागों की सफाई की बात करते हैं। And for that, they give so many teas, native medicines, and so on. और उसके लिए वो कई प्रकार की चाय और देशी उपचार और कई अन्य बातें और चीजें देते हैं। They say it will cleanse the liver, वो कहते हैं ये कलेजे को साफ करेगा, it will cleanse the internal system, या आपके अंदरूनी जितने भी तंत्र हैं उन्हें साफ कर देगा। but nothing can cleanse your soul, your heart, your life. लेकिन कोई भी आपके शरीर, आपके जीवन, आपके प्राण को शुद्ध नहीं कर सकता। Only the blood of Jesus Christ can cleanse you. केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध He कर। is the truth, who is the true one who can forgive any sin and cleanse anybody from their sins. वही तो सत्य है और वही वो सत्य है जो आपके किसी भी पाप को माफ कर, साफ कर आपको पवित्र बना सकता है। Why? क्यों? Because only through the shedding of blood can sins be forgiven. क्योंकि केवल लहू के बहाने के द्वारा से ही पापों की क्षमा हो सकती है।
Hebrews 9:22. इब्रानी 9:22 वचन के अनुसार Shedding of the blood of animals cannot cleanse anybody. जानवरों का लहू का बहाया जाना किसी को शुद्ध नहीं कर सकता। Shedding of the blood of another human being cannot cleanse any other human being. या फिर एक मनुष्य के लहू के द्वारा दूसरे मनुष्य के पाप क्षमा नहीं हो सकते, Because every man, every woman has committed sin. क्योंकि हर एक स्त्री और पुरुष ने पाप किया है। Even a newborn child is born with the seed of sin which is planted in it from their forefathers. क्योंकि एक बच्चा भी जो है अपने पूर्वजों के द्वारा उनके अंदर में पाप के एक बीज के साथ में ही पैदा होता है। That's why God came in the form of a man called Jesus. इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक मानव रूप लेकर, जिसे यीशु कहा गया है, Sanctified himself जिसने अपने आप को पवित्र किया and sacrificed himself. और अपने आप को बलिदान किया Shed his holy blood, God's blood, और अपना पवित्र लहू, परमेश्वर का लहू उसने बहाया on the cross. क्रूस के ऊपर। And by his blood, in faith, as we receive it, we are cleansed from our sins. और जब हम उसके लहू को विश्वास से ग्रहण करते हैं, हम पापों से क्षमा पाते हैं। Jesus is true to forgive you of your sins through the blood that he has shed for you. और यीशु अपने बहाए हुए लहू के द्वारा से आपके पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य 1 है। Corinthians 6:11 says, पहला कुरिन्थियों 6 और वचन 11 कहता है, you are washed, you are sanctified, you are justified by the name of Jesus. कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धोए गए, शुद्ध किए गए और पवित्र ठहराए गए हैं। Amen. आमीन। So receive the cleansing through the blood of Jesus Christ. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस सफाई को प्राप्त You will करें be set free from every और sin. आप हर एक पाप से छुटकारा पाएंगे। Now अभी you will be cleansed. आप शुद्ध हो जाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Secondly, दूसरी बात, the truth, Jesus Christ will set you free from every sickness and weakness. सत्य जो यीशु है आपको हर एक कमजोरी और रोगों से भी छुटकारा देगा। Isaiah 53:5 says so. यशायाह 53 का वचन 5 यही कहता है। Matthew 8:17 says so. मत्ती 8:17 यही कहता है। James 5:14 and 15 says so. याकूब 5:14-15 यही कहता है। Yes, by the stripes, the wounds that Jesus received in his body, we are healed today. उन कोड़ों के कारण से जो यीशु ने अपने शरीर पर खाए, उन घावों के कारण से आज हम चंगे होते हैं। His wounds are still alive. आज भी उसके घाव जो हैं सजीव हैं। When he was resurrected from the dead, after 3 days of his death, he showed his wounds to his disciples. 3 दिनों के बाद जब वो मृतकों में से जी उठा, उसने अपने चेलों को अपने घाव दिखाए। And today, by those stripes, by those wounds, he heals you and me. और आज उन कोड़ों की खातिर, उन घावों की खातिर वो आपको और मुझको चंगा करता है। That's why we are able to pray in the name of Jesus and receive healing in our souls, in our minds, in our body. इसलिए जब हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं तो अपनी देह, आत्मा और प्राण में हम छुटकारा और चंगाई पाते Through हैं। the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Jesus Christ, the truth. यीशु जो सत्य है। Let me share with you a living testimony from Sister Karamjit Kaur from Haryana. चलिए मैं हरियाणा से एक बहन करमजीत कौर की जीवित गवाही को आपसे बांटूं। She was married to Sadhuram in the year 2001. 2001 में उनका विवाह साधुराम जी के साथ हुआ। Sadhuram was an addict to alcohol even from his teenage days. और साधुराम जो था अपने युवावस्था से ही शराब का आदी था। He started with suffering. और वो जो है दुख उठाने लगी। They had 2 children, उनके 2 बच्चे हो गए, but the addictions continued. लेकिन नशा चलता रहा। Terrible financial struggles in their life. उनके जीवन में भयंकर आर्थिक कठिनाइयां आई And they had quarrels all the time in the family. और परिवार में हमेशा वो लड़ते रहते थे। 2009, 2009 में his liver became badly damaged. उनका कलेजा बुरी तरह से खराब हो गया। Doctors warned that if he continued drinking, he would die. डॉक्टर ने चिताया कि अगर वो पीता रहा तो वो मर जाएगा, But he went on. लेकिन वो पीता रहा And the liver started failing. और उसका लीवर जो है खराब होता चला गया। Doctors gave up hope. डॉक्टर ने आशा छोड़ दी। It was at that time और उसी समय a relative introduced Karamjit Kaur to Jesus Calls
prayer tower. उनके एक संबंधी ने करमजीत कौर का परिचय यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन And से she कराया began to call for prayer. और वो प्रार्थना के लिए वहां फोन करने लगी। Our prayer intercessors prayed with her night or day whenever she called. जब भी उसने फोन किया हमारे प्रार्थना योद्धा जो है मध्यस्थ जो है उनके लिए प्रार्थना करने लगी। At that time, I had gone to New Delhi to conduct a prayer meeting for all people to receive God's blessing. और उसी समय मैं नई दिल्ली में था कि लोगों के लिए एक प्रार्थना सभा करूं कि वे ईश्वरीय आशीषों को पाएं। She attended with all her relatives and her husband. वो अपने पति और अपने सारे संबंधियों के साथ उसमें भाग ली। There I prayed for God to deliver those who are bound by alcohol. और वहां मैंने प्रार्थना की कि हर एक जो शराब के बंधन में है वे छुटकारे को पाएं। Faith rose in her heart, उसके हृदय में विश्वास जाग उठा and they could meet me personally. और वो व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे मिल सके। I laid hands on her husband and I prayed for him. मैंने उसके पति के ऊपर हाथ रख करके उसके लिए प्रार्थना की And Jesus came, और यीशु आए, heard that उस prayer, प्रार्थना को उन्होंने सुना and delivered him totally after 20 years of alcoholic addiction. और 20 वर्ष के शराब के नशे के बंधन के बावजूद उसे छुटकारा दिया। His health was fully restored. He was healed. उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया और वो पूरी तरह चंगे हो गए। And God has given him life even today. और आज भी परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया है। He is alive. वो जीवित है, The family is alive. परिवार जीवित है, They have become the children of वो God परमेश्वर की संतान बन गए हैं through Jesus Christ, the truth. यीशु मसीह के द्वारा जो सत्य है। Today they are family blessing plan partners of Jesus Calls, helping others through their contributions. आज वे यीशु बुलाता है कि परिवार आशीष योजना के सहभागी हैं और अपने दान के द्वारा औरों को The आशीषित children करें। are young partners. उनके बच्चे युवा सहभागी हैं। Husband is doing business. पति जो है व्यवसाय कर रहा है And he has enrolled himself in the business blessing plan of Jesus Calls. और उसने खुद को यीशु बुलाता है कि व्यवसाय आशीष योजना में सहभागी कर रखा है। And now God has pulled them out of all their financial troubles. और परमेश्वर ने अब उन्हें उनके हर एक आर्थिक परेशानी से बाहर निकाला है। He started a new business and God is prospering him. उसने एक नया व्यवसाय शुरू किया, परमेश्वर उसे बढ़ा रहे He हैं supported the establishment of the National Prayer Tower in New Delhi to pray for the nation. और उन्होंने नई दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय प्रार्थना भवन के निर्माण के लिए सहयोग किया कि हम देश के लिए प्रार्थना कर And सकें। they supported the Israel Prayer Tower to pray for the world to have peace. और साथ ही उन्होंने यरूशलेम प्रार्थना भवन के लिए सहयोग किया ताकि हम पूरे संसार की शांति के लिए प्रार्थना कर And सकें। God has enabled them to build their own beautiful house in 2016. और 2016 में परमेश्वर ने उनकी सहायता की कि वो अपना खुद का खूबसूरत मकान बना सके। And God blessed their children too. परमेश्वर ने उनके बच्चों को भी आशीष दी। Elder son Karan is settled in the United States of America. बड़ा बेटा करण जो है यूएसए में सेटल्ड है And Jatin is pursuing his graduation. और जतिन जो है अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहा है। What a great God. कैसा महान परमेश्वर है। He is a cleanser and he is a healer. वो शुद्ध करने वाला और चंगा करने वाला है This Lord is with us right और now. यही प्रभु आज अभी हमारे साथ है। He will deliver you also and heal वो you. आपको भी छुटकारा देगा और चंगा करेगा। I pray right now मैं अभी प्रार्थना करता हूँ that every sickness, every weakness that has bound the organs of those who are praying with me will be healed in the name of Jesus. कि हर एक कमजोरी और बीमारी जिसने लोगों के अंगों को बंधन में रखा है इस समय वे यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करेंगे। Let every organ which has become defective because of sinful pleasures be healed right now in the name of Jesus. पाप के आनंद के कारण से हर एक अंग जो विकृत हो गया है इसी समय यीशु के नाम में ठीक हो जाए। Liver be healed, लिवर ठीक हो जाए, heart be healed, हृदय ठीक हो जाए, lungs be healed. फेफड़े ठीक हो जाए। From head to foot, let there be healing in the body of everyone who is praying with me in the name of Jesus. हर एक जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं सर से लेकर के पांव तक वो सब के सब यीशु के नाम में चंगे हो जाए। Lord Jesus, the truth, the living truth and the only truth, lay your nail-pierced hands upon your children and heal them, Lord. एकमात्र और जीवित सत्य प्रभु यीशु आप अपने बच्चों पर अपने हाथ को रख करके प्रभु उन्हें चंगाई और छुटकारा Let दे। every sickness come हर out. एक रोग बाहर निकल जाए, Let them be free in वे Jesus' name. यीशु के नाम में आजाद हो जाएं। Father, those who are unable to conceive, Martha and everyone else, Jemima,
Now I speak to you in Jesus' name. Be healed and receive a child by the power of पिता God. हरेक जो गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं, मार्था और जेमिमा और हरेक परमेश्वर की सामर्थ्य से एक संतान को प्राप्त Let करो। the wombs be healed now. इस समय गर्भाशय ठीक हो जाए। Let the disease in the wombs be healed and the cysts and the fibroids be healed in Jesus' name. गर्भ ठीक हो जाए यीशु के नाम में। सिस्ट और फाइब्रॉइड्स जो वहां से निकल Thank you, जाए। Lord. धन्यवाद प्रभु। Touch and heal, Master. छू करके उन्हें चंगा करे स्वामी। Every cancer, let it go. हर एक कैंसर जाता रहे। Every tumor, come out. हर एक ट्यूमर बाहर निकलो। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। Every giddiness, every pain, every weakness, stop in Jesus' name. हर एक सर्द का दर्द, हर प्रकार का चक्कर आना यीशु के नाम में पूरी तरह रुक जाए। All the pain stop. हर एक प्रकार का दर्द रुक जाए। Bones be healed. हड्डियां चंगी हो जाएं। Unknown diseases be healed. अनजाने जितने भी रोग हैं वो ठीक हो जाएं। By the stripes of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों के कारण। Thank you, Lord, for doing it. धन्यवाद प्रभु ये करने के लिए। The shoulders, the neck be healed. कंधे और गर्दन ठीक हो जाए And every organ become new now in Jesus' name. और हर एक अंग इसी समय यीशु के नाम में नया हो जाए। Thank you, Lord, for healing. धन्यवाद प्रभु चंगाई देने के लिए। Thank you, Lord, for delivering. धन्यवाद प्रभु छुटकारे के लिए। Thank you for the children who are being healed right now in Jesus' name. धन्यवाद उन बच्चों के लिए जो यीशु के नाम में भी चंगे हो रहे हैं। Whatever the devil has stolen, let it come back. Strength come back. Healing come back into their organs in Jesus' name. जो कुछ भी शैतान ने चुराया है वो सब उनके पास वापस आ जाए। चंगाई वापस आ जाए। बल वापस आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Skin be healed. चमड़ी जो है ठीक हो जाए। Those who are unable to walk, walk now. जो चल नहीं पाते वो इसी समय चलने लगे। Get up and walk in Jesus' name. यीशु के नाम में उठकर चलो। Strengthen them, Lord. प्रभु उन्हें बलवंत करें। Eyes open now. आंखें अभी खुल जाएं। Ears open now. कान खुल जाएं। Tongues open now. जीभें खुल जाएं। Let it function right now in Jesus' और यीशु name. के नाम में अभी कार्य करना शुरू करें। Brains be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में ब्रेन्स जो है वो पूरी तरह ठीक हो जाएं। Let there be deliverance right now. इसी समय उन्हें छुटकारा मिले। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। We give you the हम glory. आपको सारी महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। And also when the truth comes, और साथ ही जब ये सत्य आता the है Spirit of God will come into you. परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगी। 2 Corinthians 3:17 and 18. दूसरा कुरिन्थियों 3 और उसका 17-18। And you shall see Jesus. आप यीशु को देखेंगे। You shall be transformed into the image of Jesus. आप यीशु की सदृश्यता में बदल जाएंगे। May God give you this blessing. परमेश्वर आपको यह आशीष दें। May you become the temple of the living God according to 1 Corinthians 6:19. और पहला कुरिन्थियों 6:19 के अनुसार से आप परमेश्वर के जीवते मंदिर बन जाएं। And may you have the power to drive devils और आप में वो सामर्थ हो कि आप शैतानों और दुष्ट आत्माओं को and भगाएं bring healing और चंगाई लेकर आएं as the temple of the living God. जीवते परमेश्वर के मंदिर के रूप में। Mark 16:17. मरकुस 16:17। God bless you this month. परमेश्वर आपको इस माह आशीष दें। May you have total deliverance through the truth, Jesus Christ, and prosper. आप उस सत्य के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह है पूरी तरह से बदल जाएं और चौकाई और छुटकारे को पाएं। My friends, मेरे मित्रों, this month I want you to pray with me for the telephone prayer tower of Jesus Calls. मैं चाहता हूँ कि इस माह आप जीसस कॉल्स के टेलीफोन प्रेयर लाइन के लिए विशेष प्रार्थना करें। Being a partner with Jesus Calls, you must know we receive nearly 4 lakhs, nearly 500,000 calls every month for whom we pray night and day through the telephone prayer tower. यीशु बुलाता है कि प्रार्थना सहभागी होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए कि प्रति माह हम लगभग 40 लाख फोन कॉल्स प्राप्त करते हैं कि इनके लिए हम प्रार्थना करें। In 9 languages, 9 भाषाओं में 24/7. 24 घंटे And we have 8 telephone prayer towers across the nation of India. और पूरे भारत में हमारे पास ऐसे 8 प्रार्थना भवन हैं And 360 full-time staff praying for the people. और 360 फुल टाइम स्टाफ है जो कि लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं।
Yes, pray that God will bless this ministry. आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस सेवकाई को आशीष दे। All these services are offered absolutely free for all people. और ये सारी सेवाएं सारे लोगों के लिए मुफ्त में हैं। And your prayers will enable us to have the power of God going to do miracles for everyone who calls. और आपकी प्रार्थना हमें सक्षम बनाएंगी कि हर एक आने वाले कॉल के लिए जो प्रार्थना की जाती है उसमें परमेश्वर की सामर्थ जा करके हर एक के लिए चमत्कार And करे। your prayers will support the ministry to take care of the prayer intercessors and also the infrastructure and all the technologies that are needed to bring this prayer to all people 24 hours. और आपकी प्रार्थनाएं सेवकाई की सहायता करेगी जिसके द्वारा से हम प्रार्थना योद्धाओं के हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा किया जा सके कि 24 घंटे प्रार्थना की सेवा जारी रहे। Yes, we have to upgrade the entire computer system, the software and the follow-up system for everyone who calls. निश्चय ही हमें हर एक कंप्यूटर सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को और उसके साथ ही साथ अन्य चीजों को अपडेट करना होगा जिससे ये कार्य जारी रहे। We have to employ 100 more people to meet the demands of the calls. और कॉल्स की मांग के अनुसार 100 और लोगों की भर्ती करनी होगी ताकि सेवा जारी रहे। So your prayers will enable us to support them. तो आपकी प्रार्थनाएं उन्हें सपोर्ट करने में हमारी सहायता करेंगे And God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। If you have been blessed through the telephone prayer tower ministry, अगर आप टेलीफोन प्रेयर टावर मिनिस्ट्री के द्वारा आशीषित हुए हैं, stand with us and pray this month for God to do all this आप हमारे साथ खड़े हो कि इस माह परमेश्वर ये सब कुछ पूरा करें and be a partner to bless them. और उन्हें आशीषित करने के लिए आप एक सहभागी बने। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Precious Dr. Sahil Masih, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. अति प्रिय डॉक्टर साहिल मसीह, आपका बहुत धन्यवाद आपके धन्यवादी भेंट के लिए जो आज लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा है। According to 1 Chronicles 22:11, the Lord be with you and may you have success. पहला इतिहास 22 और वचन 11 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर यहोवा आपके साथ हो और आपको जय और सफलता प्रदान करे। Father, bless Dr. Sahil Masih. Help him to succeed in the DM final exam, Lord. Please give him supernatural wisdom, ability, anointing and grace to top the whole class by the power of God. And let this not only be the end, let him get many more certifications, many more honors in the medical realm, Lord. Make him a nationally renowned person. Reward him. पिताजी डॉक्टर साहिल मसीह को आशीष दें, उनकी सहायता करें कि वे डीएम फाइनल ईयर परीक्षा में सफल हो पाए। आप उन्हें अलौकिक बुद्धि, ज्ञान, क्षमता और अनुग्रह दें कि वो पूरी क्लास में प्रथम होने पाए। परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसा हो और यह उनके लिए अंतिम न हो, लेकिन प्रभु जी वे और भी अनेक प्रमाण पत्र प्राप्त करने पाए और बहुत से उन्हें आदर मिलने पाए। मेडिकल के क्षेत्र में प्रभु उन्हें आदर दें और एक आप उन्हें राष्ट्रीय स्तर के प्रभु जी प्रख्यात व्यक्ति बनाए और आदर दें। Bless Rachna Charan. Lord, let the marriage take place in an excellent manner. Prosper them, reward them, and bless them. Let them have a beautiful married life, set by you, Lord, established by you. Honor them. रचना चरण को प्रभु जी आप आशीष दें और उन्हें दें कि विवाह जो है सर्वोत्तम तरीके से होने पाए। आप उन्हें प्रभु जी प्रतिफल दे करके आशीषित करें और उन्हें दें कि वो एक बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन जिए जो आपकी ओर से प्रभु जी स्थापित किया जाए और उनका आदर करें। In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Precious N.G. Arvind Hemram, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. अति प्रिय N.G. अरविंद हेमरोम, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत धन्यवाद जो लाखों लोगों के लिए बड़ी ही आशीष का कारण ठहरा है। According to Exodus 33:17, God says, I'll do the very thing you have asked because I'm pleased with you. And I know you by name. I know you by name. निर्गमन 33 वचन 17 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे, जहाँ परमेश्वर की वाणी है, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। Father, bless Arvind Hemram. Give him grace to win the court case. In the name of Jesus, let this happen. Let this miracle happen. Give him the job at Sharp Projects, Lord. Do a miracle, Holy Spirit. Establish him, Lord. Establish him. Josna,
have blessing in the family and good health. पिताजी अरविंद हेम्ब्रोम को आप आशीष दें और अनुग्रह प्रदान करें कि वो कोर्ट केस को जीत न पाए, यीशु के नाम में ये होने पाए, ये चमत्कार उसके पक्ष में हो। आप प्रभु जी शार प्रोजेक्ट्स में उनको एक नौकरी दें और आप उनके लिए एक चमत्कार करते हुए पवित्र आत्मा उन्हें स्थापित करें। योत्सना को प्रभु जी आप हर प्रकार की आशीष है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, पारिवारिक आशीषों के साथ आशीषित करें। Darling children, Prarthana and Prakrit have divine wisdom and divine excellence in everything. Reward them, Lord. प्रिय बच्चे, प्रार्थना और प्रकृति को प्रभु जी ईश्वरीय बुद्धि ज्ञान और ईश्वरीय रूप में श्रेष्ठता प्रदान करें और आप उन्हें प्रभु जी प्रतिफल दें। In Jesus' name, Amen. God bless you. Precious Rachna Arora, along with you, I wish your beloved niece Abisha a happy birthday. अति प्रिय रचना अरोरा, आपके साथ मिलकर के मैं आपकी भतीजी अभिषा को कहना चाहूँगा, जन्मदिन बहुत मुबारक हो। Darling Abisha, God bless you according to Luke 2:40. The child grew and became strong. He was filled with wisdom and the grace of God was upon him. प्रिय अभिषा, परमेश्वर आपको लुका 2:40 के अनुसार से आशीष दे, जहाँ परमेश्वर के वचन में यूं लिखा हुआ है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। Father, bless Abisha and Prisha, darling children with wisdom, divine anointing and a golden future. पिताजी अभिषा और प्रशांत प्रिय बच्चों को आप बुद्धि ज्ञान ईश्वरीय अभिषेक और स्वर्णिम भविष्य की आशीष प्रदान करें। Lord, bless Rachna and Mohit with a child. In the name of Jesus, I command a miracle, Lord. Let Rachna conceive. Today, let this miracle happen today. No more waiting. Let a miracle happen. Bless, Lord. प्रभु जी रचना और मोहित को एक संतान की आशीष दें। यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ उनके लिए एक चमत्कार हो और वे इसे देखने पाए। आज ही के दिन प्रभु जी ये चमत्कार उनके लिए होने पाए। अब उनके लिए कोई इंतजार ना हो और ये चमत्कार हो जाए। उन्हें आशीष दे प्रभु। In Jesus' name, Amen. God bless you. Precious Morris Gill, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. अति प्रिय मॉरिस गिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके धन्यवादी भेंट के लिए, जो आज लाखों लोगों के लिए बड़ी ही आशीष का कारण ठहरा है। According to Psalm 34:10, those who seek the Lord lack no good thing. परमेश्वर आपको वचन संहिता 34 और वचन 10 के अनुसार से आशीष दे, जहाँ उसका वचन कहता है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। Father, let Morris be blessed. All his heart's desire be fulfilled according to the will of God. In the name of Jesus, bless his job and his life, Lord. Let him rise up and be established. पिताजी होने दें कि मॉरिस जो है उसके हृदय की हर एक इच्छा और लालसाओं की पूर्ति के अनुसार से आशीषित हो। आप प्रभु जी यीशु के नाम में उसकी नौकरी में आशीष दें और आप उसे पूरी तरह से स्थापित करें। Sister Alvina, let the kidney and BP be healed in Jesus' name. होने दें कि बहन एल्विना के किडनी और बीपी की समस्या यीशु के नाम में ठीक हो जाए। Brother Shamim Gill, have divine health, divine strength and all the joy. प्रभु जी भाई शमीम गिल को आप ईश्वरीय बल, ईश्वरीय स्वास्थ्य और हर प्रकार का आनंद प्रदान करें। In Jesus' name, Amen. God bless you.